Hello, good morning to all. In mechanical operation, in previous lecture we discussing about roll crushers or smooth roll crushers. We are seeing construction, working and principle of smooth roll crusher. Okay, already we discussed the phenomena, working condition and advantages, and also smooth roll crusher is secondary crushers. Okay, and we need to discuss the diameter of roll. ओके जो हम रोल यूज़ करने वाले हैं, ओके हार्ड रोल यूज़ करने वाला है स्मूथ रोल क्रशर के अंदर, तो उसका डायामीटर कितना रखना चाहिए, सो वो हम देखने वाला है इस चैप्टर इस थियरी के अंदर. सो अवर टुडेज डिस्कस अबाउट क्रशिंग रोल सिलेक्शंस. ओके, सिलेक्शन ऑफ क्रशिंग रोल and or we can say that derivation of the angle of NIP. Okay, also we are saying that what is the angle of NIP. Okay, so let me start. In selecting the roles for a certain duty, it is necessary to know the size of the feed material, the size of the product. જ્યારે પણ આપણે સિલેક્ટ કરીએ છીએ રોલને ત્યારે કોઈ પણ પ્રોસેસ માટે ત્યારે આપણે એ જાણવું ખૂબ જ અગત્યનું જરૂરી છે કે સાઇઝ ઓફ ધ ફીડની સાઇઝ કેટલી છે અને આપણે પ્રોડક્ટ કઈ સાઇઝમાં જોઈએ છે, તો એના ઉપર આપણા જે રોલ છે એ ડિપેન્ડ કરે છે. તો મેઇન વસ્તુ પહેલી વસ્તુ કે જ્યારે પણ ક્રશિંગ રોલ સિલેક્ટ કરીએ ત્યારે આપણે ફીડની સાઇઝ અને પ્રોડક્ટની સાઇઝ ખબર હોવી જોઈએ. Consider a system shown in figure 2.4 wherein the spherical particle of B of a material is just being caught between the rolls A and A dash are the center of two crushing roll of radius R. So as per show in figure, here A, this A and this A. Okay, so this A and A dash या ए क्या है, that is A dash. A અને A dash એ બંને શું છે, ક્રશિંગ રોલ છે. ઓકે, અને એની વચ્ચે રહેલો પાર્ટિકલ જે ફીડ મટીરિયલ પાર્ટિકલ છે એની સાઇઝ છે B, એટલે કે એ પાર્ટિકલ છે B. A અને A dash શું છે, તો કે એ બંને રોલ છે અને એની વચ્ચે જે પાર્ટિકલ ક્રશ થવાનો છે એ પાર્ટિકલ શું છે, B છે. ઓકે, એઝ પર સી ઇન ધ ફિગર, તો એ અને એ ડેસ વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ પહેલાં તો એની રેડિયસ કેટલી છે, R છે, અને બીજી વસ્તુ એ ડેસની રેડિયસ કેટલી છે, R પ્લસ D. જેમ કે આ એથી કેટલું છે, આ R સુધીનું અંતર છે ડિસ્ટન્સ, પરંતુ આ જે છે એ શું છે, ડિસ્ટન્સ D છે. ઓકે, સો સેન્ટર, આ જે સેન્ટર છે ક્રશિંગ થવા જે મટીરિયલ ક્રશ થવાનું છે એનું સેન્ટર O છે. ઓકે, અને આનું સેન્ટર A ડેશ છે, તો એ બંને વચ્ચેનું અંતર કેટલું છે, R પ્લસ D. ઓકે, બીજી વસ્તુ A ડેશ અને B આ બંનેના સેન્ટર વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ કેટલું છે, એ બંનેના સેન્ટર વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ છે R પ્લસ સ્મોલ r. ઓકે, સો ડિસ્ટન્સ બિટવીન ક્રશિંગ રોલ એન્ડ મટીરિયલ R plus small r. Okay, and A and B ये दोनों का डिस्टेंस भी वैसा ही रहेगा. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे हमारा जो पार्टिकल है, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस क्लियर फर्स्ट दिस थिंग्स. As shown in figure where spherical particle of B, here is the spherical particle B है, and A dash are the rollers in between. जो ये हमारा spherical particle है वो क्या हो रहा है, क्रश हो रहा है, और उसकी रेडियस क्या है, R. ओके, स्मॉल r. और ये जो पार्टिकल है उसकी रेडियस क्या है, कैपिटल R, और रोल की रेडियस है स्मॉल r. ओके, The line AB passes through the center of the left hand roll. Line AB
किसका सेंटर है, ये स्पेरिकल पार्टिकल का सेंटर और ये रोल का सेंटर। थ्रू द सेंटर पार्टिकल एंड थ्रू पॉइंट सी वेयर द पार्टिकल इज इन द कॉन्टेक्ट विद द रोल। कहाँ पे हो रहा है, सी पॉइंट पे। सी पॉइंट कहाँ पे, ये पॉइंट। तो यहाँ पे हमारा जो पार्टिकल है स्पेरिकल पार्टिकल वो रोल के कांटेक्ट में आ रहा है, तो वहाँ पे हमने इंडिकेट कर दिया है उसका पॉइंट सी। ओके, लेट द एंगल बिटवीन लाइन ए बी एंड द हॉरिजॉन्टल, इन अदर वर्ड लाइन ज्वाइनिंग टू सेंटर्स ऑफ रोल्स, लेट बी अल्फा। तो ये जो पॉइंट सी है और ये जो सेंटर है वो दोनों के बीच में हम लाइन ड्रॉ करेंगे और वो हॉरिजॉन्टल सेंटर है, हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल क्रिएट करता है, अल्फा जितना एंगल बनाता है। ठीक है, શું કરવાનું છે, લાઈન એ બી ડ્રો કરવાની છે અને હોરિઝોન્ટલ લાઈન ડ્રો કરવાની છે। તો એ બંને લાઈન વચ્ચે જે પણ એંગલ થાય છે એનું નામ આપવાનું છે આલ્ફા। ઓકે, નાઉ નેક્સ્ટ, ધ લાઈન ઓડી ઇઝ ટેન્જેન્ટ ઓફ ધ રોલ્સ એટ પોઈન્ટ सी। લાઈન ઓડી, હવે લાઈન ડ્રો કરવાની છે આ જે રોલ છે બરાબર, જેમ કે આ પાર્ટિકલ છે। ઓકે, એની સાથે જ્યારે આ ટેન્જેન્ટ TO પાર્ટિકલ જ્યાં ટચ થાય છે એટલે કે જ્યાં સંપર્કમાં આવે છે એ પોઈન્ટ પર શું કરીશું આપણે, એક ટેન્જેન્ટ ગાળીશું સેન્ટર O અને T સાથે। તો આ શું થશે, DO એટલે કે OD એ શું થશે, આપણો ટેન્જેન્ટ થશે। ઓકે, એટ પોઈન્ટ C એન્ડ એઝ ધ લાઇન OD ઇઝ પરપેન્ડિક્યુલર ટુ લાઇન AB, लाइन OD इज परपेंडिकुलर टू लाइन AB। AB के मुकाबले में क्या है, ये परपेंडिकुलर हो, लाइन AB इज परपेंडिकुलर टू लाइन AD। तो ये लाइन AB एंड लाइन OD बोथ आर परपेंडिकुलर। ओके, ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर में जॉइंट है। इट मेक्स द सेम एंगल अल्फा द वर्टिकल, इट मेक द सेम एंगल विथ अल्फा। ओके, तो ये कौन सा एंगल बनाएंगे, तो ओके यहाँ पे ये जो एंगल है, ओके तो ये कौन सा एंगल बनाएंगे, अल्फा। ये जो टेंजेंट है, टेंजेंट का ये जो स्पेरिकल पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल लाइन है उसके साथ क्या करेगा, सिमिलर एंगल बनाएगा अल्फा जितना। ठीक है, नेक्स्ट, नेग्लेक्टिंग द ग्रेविटी फोर्स। हमें इस थियोरम के अंदर जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, ओके, और एक्टिंग ऑन अ सिस्टम, लेट बी नेग्लेक्टिंग, इसके अंदर हमें ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडर करना नहीं है। द टू फोर्स एक्टिंग एट अ पॉइंट सी आर, सी पॉइंट पे दो फोर्सेस लगते हैं एट द पॉइंट सी। द टेंजेंटियल फ्रिक्शन फोर्स T having a vertical component T cos alpha। ओके, तो हवे let us first clear that कि જ્યારે પણ ટેન્જેન્ટ જે પરપેન્ડિક્યુલર લાઇન છે AB અને DO, ઓકે, તો એ જ્યારે OB પર શું કરે છે, આલ્ફા જેટલો એંગલ બનાવે છે, તો એ જ એંગલ જે T पॉइंट है बराबर, D पॉइंट पर, तो के डायरेक्शन के नीचे की डायरेक्शन में क्या होगा, ये जितना एंगल बना रहा है उतना ही एंगल यहाँ पे वो क्रिएट करेगा बराबर। जेटलो पण एंगल अहींया अल्फा क्रिएट करशे बराबर, तो सेम एंगल अहींया पण क्रिएट करशे। सो दिस फंडामेंट्स वी ऑलरेडी लर्नड इन 10th स्टैंडर्ड। ओके, तो आ जेटलो एंगल बनशे एटलो ज आ एंगल बनशे। ओके, तो हवे पॉइंट सी पर, ओके, पॉइंट सी पर ज्यांथी ए आवे छे तो ए पॉइंट सी पर के केटला फोर्स लागशे, बे फोर्स लागशे। पहलू एक तो पहलो फोर्स ए लागशे द टेंजेंटियल फ्रिक्शन फोर्स टी, टेंजेंटियल फ्रिक्शन फोर्स टी, कि आ जे डायरेक्शन ની અંદર શું लागशे, पॉइंट टी डायरेक्शन में फ्रिक्शन नो फोर्स लागशे आ डायरेक्शन में टी बराबर, कारण के ए पार्टिकल ने શું કરવાનું છે, અંદરથી ક્રશ થઈને નીકળવાનું છે, એટલે એ ત્યાં શું લાગશે ને
ઘર્ષણ બળ એટલે કે ફ્રિક્શનનો ફોર્સ લાગશે. બીજી વસ્તુ, એન્ડ ટી હેવિંગ ધ વર્ટિકલ કમ્પોનન્ટ ટી કોસ આલ્ફા, तो एना पर जितलो फोर्स लागसे ये कितलो हशे टी कॉस अल्फा, क्योंकि एंगल और एंगल की नज़दीक की साइड कौन सी होती है कॉस, और सामने की साइड कौन सी होती है साइन. सो जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो कौन सा होगा कॉस. ठीक है, ये फंडामेंट हमें 10th के अंदर पता है कि क्या होता है कि नज़दीकी पासे की जो बाजू होती है, ठीक है, पासेनी बाजू ए शुं होय छे कॉस होय छे ट्रायंगलनी अंदर, अने ट्रायंगलनी सामेनी बाजू शुं होय छे साइन होय छे. तो एंगलनी पासेनी बाजू शुं थशे अहींया कॉस, बराबर कॉस. तो अहींया शुं आवशे एनो फोर्स टी कॉस आल्फा. ओके, देन नेक्स्ट, हवे द रेडियल फोर्स एन, बराबर. हवे आपणुं रोलर्स छे, बराबर, ए कई डायरेक्शन में फरे छे ए फरे छे, बराबर. तो एक मान लीजिए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फरे छे अथवा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फरे छे. तो हवे ज्यारे ए रोलर ज्यारे एक टाइमे शुं करशे स्टार्ट थशे फरवानो, तो एना उपर कयो फोर्स लागशे रेडियल फोर्स एन. ओके, रेडियल फोर्स एन लागशे, जेम के एज पर वी सी आर हियर. सो दैट पॉइंट. तो यहाँ पे अहींया शुं थशे जुओ, पहला ते स्टार्टिंग में शू थयुं ए एंगल बनावे छे, बराबर. आपणे डिस्कस कर्युं कि शुं कयो एंगल बनावे छे ए जेटलो एंगल बनावे छे, बराबर, अल्फा जेटलो एंगल बनावे छे. हवे ज्यारे आ पार्टिकल शुं करशे आ डायरेक्शन ने अंदर कोईपण डायरेक्शन ने अंदर फरशे त्यारे एना पर शुं कई डायरेक्शन में सेंट्रीफ्यूगल एटले के रेडियल फोर्स लागशे एना पर, बराबर. तो रेडियल फोर्स कई डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में लागशे. तो ए एन एने नाम पेलू टी है आने आने आप नेम आप्युं छे एन. तो ए शुं थशे एन साइन आल्फा. ट्रायंगलनी सामेनी साइड शुं छे, जेवी रीते जो पासेनी बाजू होय तो त्यां शुं थशे कोस होय अने त्यां शुं थशे अहींया सामेनी साइड छे એટલે n sin alpha. ओके, सो यू हैव टू क्लियर दैट देयर इज अ two forces acting on roller. First is on point C, that is tangential friction force acting on the system, as well radial force N is in the vertical component N sin alpha. Okay, the force T is related to the force N through the coefficient of friction mu. So T is equal to mu n. So relation between them, friction force and radial force, is that what T is related to the N. Okay, so that is friction coefficient, that is mu. So relation between them is T is equal to mu n. Next, the vertical component of the forces T and N are opposite. We know that the direction of both forces are in the opposite direction. Okay, force N sin alpha, that means जो रोलर के ऊपर रेडियल फोर्स लग रहा है उसकी बात कर रहे हैं, tends to expel the particle from the rolls, while force T cos alpha tends to draw the particle between the rolls. ये क्या हो रहा है, ये जो फोर्स है ये पार्टिकल को अपवर्ड डायरेक्शन के लिए ले जाने के लिए ट्राई कर रहा है, और ये फोर्स जो T cos alpha है तो वो क्या कर रहा है, पार्टिकल को ड्रॉ बैक. ठीक है, टेंस टू ड्रॉ द पार्टिकल बिटवीन रोल्स, पार्टिकल को रोल्स के अंदर लाने के लिए ट्राई कर रहा है. इफ द पार्टिकल इज टू बी ड्रॉन बिटवीन द रोल्स एंड क्रशेड, मान लीजिए कि रोलर्स के अंदर जो पार्टिकल क्रश होने वाला है वो पार्टिकल वहाँ पे क्रश होने जा रहा है, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, T cos alpha is greater than N sin alpha. We know that કે એના પર લાગતું ઘર્ષણ બળ એ એના રેડિયલ ફોર્સ કરતાં હંમેશા કેવું હોય, એના જેટલું અથવા એના કરતાં વધારે હોવાનું છે. કારણ કે અહીંયા આપણે શું કર્યું છે, એક વસ્તુ કે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સને આપણે નેગ્લેક્ટ કર્યું છે. સો બટ ઇન एक्चुअल प्रैक्टिस साइज ग्रेविटेशनल फोर्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले इन दिस ऑपरेशन. ओके, तो उसके ऊपर एडिशनल ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगता है, एंड
जो ये पार्टिकल है स्पेरिकल पार्टिकल, इट हैविंग अ सम मास एंड वॉल्यूम, तो इसकी वजह से वो क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा. सो ये जो टेंजेंटियल फ्रिक्शन फोर्स है इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n sin अल्फा. ओके, T and N आर रिलेटेड टू थ्रू. सो दैट मीन्स अगर हम क्या करेंगे, ये we know that relation between tangential force and radial force is T is equal to mu n. okay, so T की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, mu n cos alpha is greater than or equal to n sin alpha. then mu n will be cancel, n term will be cancel, n cancel, then ये टर्म यहाँ जाएगा तो साइन अल्फा डिवाइड बाई कॉस अल्फा दैट इज टेन अल्फा. ओके, तो रिमेनिंग पार्ट इज म्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टेन अल्फा. ओके, सो दैट इज द टेंजेंट ऑफ एंगल अल्फा मस्ट बी लेस देन द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. बराबर, तो ये इस थ्योरम से हमें पता चलता है कि टेंजेंट है, ओके, उसके पास जो एंगल बन रहा है अल्फा, उसकी वैल्यू मस्ट बी लेस देन फ्रिक्शन कोफिशिएंट से कम होनी चाहिए. ओके, जो ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट है दैट इज म्यू. ओके, let us clear that alpha must be less than the coefficient of friction. बराबर, तो mu is greater than or equal to 10 alpha. so the value of mu varies from material to material. म्यू की वैल्यू, बराबर, मटेरियल की वैल्यू, फ्रिक्शन वैल्यू क्या होती है, मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है और वो चेंज होती रहती है. बट फॉर और पार्टिकल पर्पज द वैल्यू ऑफ द एंगल अल्फा इज यूजुअली टेकन एज 16 डिग्री सेल्सियस. ओके, इन जनरल केस जो ये अल्फा की वैल्यू है वो हम क्या कंसिडर करते हैं, 16 डिग्री. ओके, रिमेंबर दिस फिगर, द एंगल ऑफ DOE show in figure, angle of DO and E. okay, तो उसकी वैल्यू which is the twice the angle of alpha. मतलब क्या है कि ये जो DOE है, DO and E, इसकी वैल्यू ये जो एंगल है उससे क्या है, ट्वाइस है. मतलब आना करता एनी वैल्यू के लिए બમણી છે. એટલે આપણે કહી શકીએ DOB કરતા DOE એ શું છે, એની સાઇઝ ડબલ છે, બમણી છે, ટ્વાઇસ છે. તો એને શું કહેવાય, ઇટ ઇઝ કોલ એંગલ ઓફ નીપ. ઓકે, એંગલ ઓફ નીપ. what is the definition of angle of NIP? We are discussing in next lecture. First, DOB and BOE. तो ये पूरा ट्राइंगल एंगल DOE is twice than एंगल ऑफ अल्फा. तो इसे क्या कहेंगे, ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम, एंगल ऑफ NIP.